Welcome to our channel, all of you. Okay, so today I'm going to start with the part 2 of this chapter, multiplication and division of integers. If you have seen my previous video, I have explained there the rules of multiplication and division of integers. Okay, if you have not seen, I will mention the link in the description. Okay, so today we are going to solve some sums based on the rules of multiplication and division of integers. So let's get started. Okay, so multiply. If you have two numbers, that is two integers. So you can see the first one, minus 5 into minus 7. So both signs, both the integers are negative. So negative into negative gives you positive. So my answer is in positive. See, 35. 35 is my answer. Third one, 9 into minus 4. Okay, so if it's equal to minus 36. Why minus 36? Because my one integer is negative and my one integer is positive. So it is my answer will be negative. Okay. Now you must be thinking that why I have written my numbers are not in sequence, because this I have taken from the textbook from the Maharashtra board. Okay, from the practice set. Okay, but this is applicable for all the all the boards. So you can refer. So fifth one, minus 124 into minus 1. So minus into minus, again same signs. So negative into negative is positive, always positive. So my answer is in positive, that is 124. Minus 63 into minus 7, again 441 is my answer, because my both the integers are negative. So I hope you have understood this multiplication. It's very easy if you know the rules, so you will know the answers also. So moving on to next. Now, before we move on to division of integers, I have one concept to introduce to you, that is number line. Okay. Now, we are very much familiar with the number line since we are studying from standard second. Okay. So, on the one side, there is positive numbers, and on the other side are the negative numbers. So, here it is saying that opposite numbers are the same distance from zero. Okay. That's that from the zero, the numbers are at same distance. But here, the most important thing, that the sum of opposites is always zero. That is, if I take any number, let's say 5. Okay. So if I take minus 5 and over I take plus 5. Okay. Because nothing is there over here in the number. That means it's positive. So here I have taken minus 5 plus 5. Why I'm taking plus? Because here they are telling sum. Okay, the sum of opposites. So minus 5 plus 5 is always equals to 0. Okay. This concept is also, this opposite number is also known as additive inverse. So if I ask you that what is the additive inverse of 7? So you will say the additive inverse of 7 is minus 7. What is additive inverse of minus 6? So you will say the additive inverse of minus 6 is plus 6. So that means opposite numbers. Okay, so opposite numbers in short, it's known as additive inverse. Now moving on to the division of integers. Now question number 1, let's solve. Minus 96 divided by 16. Now you must be thinking, अरे we can do it with calculator also. हम calculator से कर सकते हैं, but it is the division of integers and we are in school. तो हम लोग को उसके हिसाब से करना पड़ेगा. अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या? टू अवॉइड कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस चीज का कंफ्यूजन हमें अवॉइड करना है? माइनस साइन का. ठीक है, हमें इवन दो हमें रूल्स पता है, बट स्टिल कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे. ठीक है, मैं माइनस 96 को माइनस 1 इंटू 96 लिख सकती हूँ. ओके, सो आई विल राइट दैट. एंड 96 डिवाइडेड बाय 16 को मैं 96 अपॉन 16 लिख सकती हूँ. जब मैं कॉमन ले लूंगी माइनस 1, तो मैं कुछ इस तरह से लिखूंगी, माइनस 1 इंटू 96 अपॉन 16. ये मैंने लिख दिया. अब मैं आंसर कैसे लाऊंगी? तो इसके लिए हमें पहले फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स 96 का भी निकालेंगे और प्राइम फैक्टर्स 16 का भी निकालेंगे. ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले 96 का. तो 96 ये इवन नंबर है, तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर होता है. ठीक है, ठीक है. So 2 से मैंने डिवाइड किया तो 48 मिला. Then again it's an even number, so again we will go with 2. So 2 24s are 48, then again 2 2 12s are 24, then again 2 2 6s are 12,
then 2 3s are 6 and 3 1s are, until we get 1 we have to do continuously. ओके तो ये हमारा 96 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। अभी मुझे 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सो 2 into 8 is 16, then 2 into 4 is 8, then 2 into 2 is 4, then 2 1s are 2. Okay, so these are the prime factors of 16. तो अब हम क्या करेंगे, हम 96 की जगह पे ये प्राइम फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब हम लोग लिख देंगे। ओके सो वी विल राइट एज इट इज इक्वल्स टू -1 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 अपॉन 2 into 2 into 2 into 2। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी कॉमन है हम लोग ना उसको कैंसिल कर देंगे। ओके जैसे कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, and this 2 and this 2 also gets cancelled. So now nothing is remaining in the denominator, but something is remaining in the numerator. That is -1 into 2 into 3. That is I can say -1 into 6, 3 into 2 is 6. So I will write that -1 into 6 is equal to -6. So this is my answer. Okay, I hope you got it. Let's do another example. -85 divided by 20. ओके तो हम लोग अगर अगेन यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है, यहाँ पे इधर माइनस का साइन है फिर से, तो हम लोग क्या करेंगे, टू अवॉइड कंफ्यूजन हम लोग माइनस को कॉमन कर देंगे। दैट इज -85 को आई कैन राइट इट एज -1 into 85। ओके सो और फिर में मैं लिखूंगी -1 into 85 अपॉन 20, लाइक दिस आई विल राइट। ओके अब मैं क्या करूंगी, मैं 85 के और 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी, प्राइम फैक्टर्स दैट इज यूजिंग प्राइम नंबर्स ओनली। तो मैंने 85 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। तो वो 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है तो मैंने 5 से ट्राई किया। तो 5 into 17 is 85 एंड 17 हमारा प्राइम नंबर है ही, तो वो किसी और के टेबल में नहीं जाएगा, वो खुद के ही टेबल में जाएगा। तो 17 1s are 17। फिर हम लोग 20 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 10s are 20, 2 5s are 10, देन अगेन 5 1s are 5। तो हमारा 20 का प्राइम फैक्टर्स निकल गए। नाउ अकॉर्डिंगली वी विल सब्स्टिट्यूट। तो मैंने -1 into 5 into 17 अपॉन 2 into 2 into 5। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी कॉमन है वो कैंसिल कर देंगे। 5 and 5 गेट्स कैंसल्ड, ठीक है। तो हमारे न्यूमरेटर में क्या बचा, -1 into 17 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 into 2 दैट इज 4। सो मेरा मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1 into 17 अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू -17 अपॉन 4 एंड ये मेरा आंसर है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया रहेगा दो सम से कि कैसे डिवाइड करते हैं इंटीजर्स को। ओके कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। राइट 3 डिविजन ऑफ इंटीजर्स सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24 अपॉन 5। अब ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है ये क्वेश्चन। ओके जैसे हमें 3 डिविजन ऑफ इंटीजर्स फाइंड करने हैं सो दैट उसका फ्रैक्शनल फॉर्म जो उसका आंसर होगा वो 24 अपॉन 5 उसका आंसर आना चाहिए। अब ऐसे केसेस में, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम लोग है ना कोई भी नंबर अपने चॉइस का वी कैन टेक मींस वी कैन टेक एनी नंबर बाय आवर चॉइस। ओके एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट सेम नंबर इन द न्यूमरेटर एज वेल एज इन द डिनोमिनेटर सो दैट मुझे पता चलना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि वही मेरा आंसर आने वाला है 24 अपॉन 5, क्योंकि मैं अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी मतलब कि मेरा आंसर 24 अपॉन 5 आएगा ही। अब वो कैसे, चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है that multiply any number with the given fraction both in numerator and denominator। तो मैंने अपनी मर्जी से ले लिया, एक नंबर 3 ले लिया। अब ये आप क्या करोगे ना, जब आप सॉल्व करोगे अपने बुक में तो ये आपका रफ वर्क होना चाहिए, ठीक है। रफ वर्क में दिखाना, आपका सोल्यूशन अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये सभी रफ वर्क है। आपका सोल्यूशन बहुत ही इजी है, वो 2 लाइन्स में खत्म हो जाता है। तो ये आपको रफ वर्क में सॉल्व करना। मैंने देखो क्या किया है, 24 अपॉन 5 को मैंने सेम नंबर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे 24 into 3 72 मिला और 5 into 3 15 मिला। अब ये मुझे रफ वर्क में करना है। अब मेरा सोल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, ये जो मुझे 72 अपॉन 15 मिला है ना, मैं इसी को डिविजन फॉर्म में लिख दूंगी बिकॉज 72 डिवाइडेड बाई 15 मेरा 24 अपॉन 5 ही होगा। अब वो कैसे, चलो देखते हैं। ठीक है तो मेरा सोल्यूशन ऐसे स्टार्ट होगा, आंसर
72 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, अब 72 डिवाइडेड बाय 15 मैंने लिखा है, राइट। अब मैं इसी को जो आपने रफ वर्क में किया है वो आप अपने सोल्यूशन में अब लिखोगे। ठीक है, तो आप ऐसे लिखोगे 72 अपॉन 15 इज इक्वल टू 24 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 3। मतलब जो हमने रफ वर्क में किया था, जो अपने चॉइस से जो नंबर से मल्टीप्लाई किया था, वही सेम चीज हमें यहाँ पे लिखना है, बट थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, सो 24 इंटू 3 और 5 इंटू 3 हो गया, बिकॉज 24 इंटू 3 72 होता है और 5 इंटू 3 15 होता है, तो मैंने 72 को ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन है जैसे कि ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचा क्या, 24 अपॉन 5, और हमें यही आंसर चाहिए था। करेक्ट, मतलब देखो यहाँ पे वही लिखा है ना, 3 डिविजन में इंटीजर सच दैट द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ ईच विल बी 24 अपॉन 5। तो मुझे 24 अपॉन 5 मुझे आंसर मिल गया। ठीक है, तो आप ऐसे ही आप कर सकते हो और प्रैक्टिस भी करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, सो थैंक यू। और अगले वीडियो में मैं आपके साथ में नया चैप्टर शुरू करूंगी, जो कि है HCF एंड LCM। तो स्टे ट्यून्ड, like, share and subscribe my channel. Thank you.